गुड आफ्टरनून बच्चों, वेलकम बैक। जैसा कि आपको याद होगा, हम लोग नाइन्थ का फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन कर रहे थे और आज हम फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके इस चैप्टर को ख़त्म कर रहे हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादातर जो है वो न्यूमेरिकल्स होंगे। देखिए, थ्योरी की तो अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती ही है। न्यूमेरिकल्स ये अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट कंसिडर किए जाते हैं। ये न्यूमेरिकल्स ही एक्चुअली चैप्टर स्टडी करने का फ़ायदा तब होता है जब आप न्यूमेरिकल्स को अच्छे से समझ सकें, ठीक है ना। थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स तो आपको बड़े अच्छे से समझ आ ही जाते हैं कई बार, और अगर नहीं आते हैं तो आप उनको 2-3 बार पढ़ेंगे तो समझ ही जाएंगे। लेकिन न्यूमेरिकल्स जो हैं, इनको बेसिकली आप जितना रिटर्न में प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ये बेनिफिट देंगे। तो पहला न्यूमेरिकल हमारा जो वो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सो वी हैव अ ट्रक, इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर। देखिए, इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, सो इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज डेफिनेटली गोइंग टू बी, its initial velocity is going to be 0 meter per second, है ना। its initial velocity is going to be 0 meter per second, ठीक है जी, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। a truck starts from rest and rolls down a hill with constant acceleration. It travels a distance of 400 meter. So the distance traveled by it is 400 meter, मतलब s is equal to 400 meter. s is going to be 400 meter, ठीक है जी। आप देख रहे होंगे एस जो है वो 400 मीटर है। सो अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 seconds. So what about the time? It is 20 seconds. So let me remind you, we are starting a few important questions from the chapter Forces and Laws of Motion. It is the second chapter, okay? In physics, this one is the second chapter. And now we have taken a question from NCERT exercise. It is actually a numerical, and it states a truck starts from rest. Since it starts from rest, so initial velocity we have taken it 0 meter per second, and it starts from rest and rolls down a hill with a constant acceleration. It travels a distance of 400 meter. The distance covered by it is 400 meter, and it travels for 20 seconds. So find its acceleration. We are supposed to find its acceleration. Okay, first you have to find its acceleration. You have to find its acceleration first, and then find the force acting on it. And you have to find the force too. You have to find the force acting on it. पहले आपको acceleration निकालना है, फिर आपको force निकालना है, और आपको एक और चीज़ given है. If its mass is 7 metric tons, mass आपको given है, it is 7 metric tons, and I'm sure you people know that 1 metric ton is 1000 kg. So it is going to be what? It is going to be 7000 kgs. Okay, it is going to be 7000 kgs. So I'm going to repeat this one again. A truck starts from rest, that's why we took initial velocity 0 meter per second. It rolls down a hill with a constant acceleration. It travels a distance of 400 meter. The distance covered by it is 400 meter, and the time it took is 20 seconds to travel this distance of 400 meter. We have to find its acceleration. Then we have to find the force acting on it. And again, mass is given to you. It is 7 metric tons. So you have to convert it into kgs. 7 metric tons is equal to 7,000 kgs. Because 1 metric ton is 1,000 kgs. So 7 metric ton is going to be 7,000 kgs. So let us start. We have to find acceleration and we have to find force. So सबसे पहले, let us take S is equal to ut plus half AD square. Okay. S is equal to ut plus half AT square. We know S is 400 meter. We know initial velocity is 0. We know time 20 seconds. Half A, we are supposed to find it. So we cannot take any value here. And what about T? It is 20. Okay.
Let us solve it, and you'll find that when you solve it, you're going to get acceleration 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आप करके देखिएगा, आपको इसका एक्सेलरेशन जो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, मिल जाएगा. तो ये आपने इस तरह से फर्स्ट पार्ट को जो है वो कवर कर दिया. फर्स्ट पार्ट में यू वर सपोज टू फाइंड एक्सेलरेशन. नाउ व्हाट नेक्स्ट? In the next part, we are supposed to find the force applied, and we know the force applied is mass into acceleration. Okay, we know it is going to be mass into acceleration. So, since force is mass into acceleration, that means force is equal to, what is mass? You know, it is 7,000 kg. 7,000 kg. What about acceleration? Acceleration, you just determine the value of acceleration 2 meter per second square. So what about force? Force is 14,000 Newton. ये है जी फोर्स. तो ये हमारा आज का पहला प्रश्न था. मैंने आपको बताया आज हम इस चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं, और इस चैप्टर को ख़त्म करने के लिए शुरुआत हमने एनसीईआरटी की एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल से की, जो मैंने आपको अभी ख़त्म कराया. इसमें एक्सेलरेशन आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया और फोर्स आपकी जो आई है 14,000 न्यूटन. ठीक है जी, आगे चलते हैं. तो हियर इज द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, और वो है 8,000 kg इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स. ठीक है, एक 8,000 kg इंजन है विच पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स ईच ऑफ 2,000 kg. मतलब ये कि अगर सपोज करो एक इंजन है, ये आगे की तरफ इंजन है. ठीक है जी, ये एक इंजन है. ठीक है, तो इसके पीछे अगर ये इंजन है तो वो कह रहा है 8,000, और इसका मास है 8,000 kg. ठीक है जी, और इट पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स. इसके पीछे 5 वैगन्स हैं. ठीक है जी, 1 2 3 4 और ये 5. सो हियर दिस वन इज़ एन इंजन. ये एक इंजन है जो 5 वैगन्स को खींच रहा है. ये नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4 एंड नंबर 5. ठीक है जी. सो अगेन 8,000 kg इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स ईच ऑफ 2,000 kg. हर एक का वजन जो है ये 2,000 kg है. तो मैं इससे पहले आपको बता दूं, मास जो है इंजन का वो 8,000 kg है. ठीक है जी, और मास एक वैगन का सिंस 2,000 kg है, हर एक का 2,000 kg है. इसका भी 2,000 kg है, इसका भी 2,000, इसका भी 2,000, इसका भी 2,000, इसका भी 2,000. मतलब हर वैगन जो है वो 2,000 kg का है. ये वाला वैगन भी 2,000 kg का है. इन सब का सम 2,000 kg नहीं है. आप ध्यान से सुनिएगा, इन सब का सम 2,000 kg नहीं है. नंबर 1 2,000 kg है, नंबर 2 भी 2,000, नंबर 3 भी 2,000, नंबर 4 भी 2,000 और नंबर 5 भी 2,000. इसका मतलब है ये सब जो है मिलाकर, सिंस 5 वैगन्स हैं, इन 5 वैगन्स का वजन जो है इट इज़ 10,000 kg. खैर हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे. अभी आगे देखते हैं क्या मैं बात करने जा रहा हूँ. 8,000 kg engine pulls a train of 5 wagons, each of 2,000 kg, along a horizontal track. If the engine exerts a force of 40,000 न्यूटन. ठीक है जी, एक ये इंजन जो है 40,000 न्यूटन का फोर्स जो है वो लगा रहा है. द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन इज 40,000 न्यूटन. ठीक है, अब इन पांचों का मास देख लेते हैं. हम इसको m2 से डिनोट कर लेते हैं. तो एक अगर 2,000 है तो 5 कितने हो जाएंगे? 5 into 2,000, they are going to become 10,000 kg. I'm sure you people have got it. Since the number of wagons is 5, the number of wagons is 5, 1, 2, 3, 4, 5, and each one is about 2,000 kg of mass. So the total mass of these 5 wagons, it is going to become 5 into 2,000, that is 10,000 kg. Okay, the force exerted by this engine on these 5 wagons is 40,000 Newton. It is given to you. If the engine exerts a force of 40,000 Newton and the track offers a frictional force of 5,000 Newton, you know, frictional force, say small f, is exerted by the track
so it is going to become 5000 Newton. Okay, we have denoted this force of friction with small f. It is small f, okay, and small f is 5000 Newton. So let me repeat it once again. The mass of this engine is 8,000 kg, and the mass of wagons being pulled by this engine is about 2,000 kg each. So the total mass of these 5 wagons, I have denoted it by M2, and it is going to become 5 into 2,000, that is 10,000 kg. The force exerted by this engine on these 5 wagons is 40,000 Newton. All these are given, okay? And the track offers a frictional force, or the force of friction offered by the track is 5,000 Newton. So what are we supposed to find? Now what are we supposed to find? We have to find first the net accelerating force. The net accelerating, this is the first part, okay? This is the first part. We are supposed to find the net accelerating force. What? Net accelerating force. So what about the net accelerating force? It is definitely going to be the total force exerted by the engine. अब देखिए net accelerating force क्या होगा? जो फोर्स इंजन लगा रहा है, इंजन तो 40,000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, 40,000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, और इस फोर्स को अपोज करने के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है 5,000 न्यूटन. लेकिन डेफिनेटली ये फोर्स बड़ी है तो ये ओवरकम कर लेगी इस फोर्स को. तो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स इज गोइंग टू बिकम capital F minus small f. What is that? It is 40,000 Newton minus 35, I'm sorry, it is 5,000 Newton. Okay, क्यों हुआ ऐसा? Capital F minus small f. And what is that? It is 35,000 Newton. ठीक है जी. सो ये था फर्स्ट पार्ट. नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स आपने लगा लिया. अब हम सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं. तो सेकंड पार्ट जो है वो क्या होने वाला है? इट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन. तो ट्रेन कितना एक्सेलरेट करेगी? ट्रेन एक्सेलरेट कितना करेगी मैं आपको उसके बारे में बता दूं. आपको पता है फोर्स जो होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है. तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन जो है फोर्स अपॉन मास के बराबर होना चाहिए. तो एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन वो क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन वो क्या होगा? वो फोर्स अपॉन मास होना चाहिए, है ना. तो फोर्स एक्चुअली क्या होगा? फोर्स तो वही होगा ना, नेट फोर्स जो एक्सेलरेटिंग फोर्स. और मास क्या होगा? मास होगा इंजन का मास और इन 5 वैगन्स का मास, मतलब M1 प्लस M2. ठीक है ना. तो मैं यहाँ पर बता दूँ, ये जो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स है ये टोटल फोर्स क्या होगा? ये है टोटल फोर्स. ठीक है जी. ये टोटल फोर्स क्या है मैं आपको बता दूँ. यहाँ पर मैंने फोर्स अपॉन टोटल मास लिखा है. तो फोर्स क्या हो जाएगा? F माइनस एफ, ये वाला फोर्स, ओके. और मास कौन सा होगा? M1 प्लस M2 करने के बाद, वो हमने यहाँ पर कर लिया. सो M1 प्लस M2 आप ये कर लेंगे तो आपके पास ये क्या बनने वाला है? 35,000 न्यूटन डिवाइडेड बाय, इट इज़ 8,000 प्लस 10,000. ओके, 8,000 प्लस 10,000. आई एम श्योर दैट यू पीपल could calculate that it is going to become about 2 meter per second square. I'm not sure, but yeah, it is about 1.94 meter per second square. आप सॉल्व करके देखिए, 1.94 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये आपके पास आ जाएगा. तो अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की. इसी प्रश्न का तीसरा हिस्सा जो है वो क्या है? वो है यू हैव टू फाइंड द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2. अब देखिए ये इंजन इसको खींच रहा है, तो इसका मतलब है इंजन वैगन, एक्चुअली इंजन जो है वैगन 1 को खींच रहा है. ठीक है ना. वैगन 1 वैगन 2 को, वैगन 2 वैगन 3 को, वैगन 3 4 को, 4 5 को. ऐसे ही आप देखेंगे तो ये इंजन जो है इन 5 को खींच रहा है. अब अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूंगा तो ये इन 4 को खींच रहा है. अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूंगा दूसरे वाले की
तो ये इन तीनों को खींच रहा है। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये इन दोनों को खींच रहा है, ये इसकी बात करूंगा ये सिर्फ फिफ्थ को खींच रहा है, और इसकी बात करूंगा तो ये किसी को नहीं खींच रहा है ना। ऐसा ही होगा ना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप इंजन की बात करते, जैसे यहां पर क्वेश्चन था द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2, वैगन 1 2 के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है ये आपको निकालना है। ठीक है, तो देख लीजिए, फोर्स ऑफ वैगन 1, फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2, वैगन 1 जो है वैगन 2 पर क्या फोर्स लगा रहा है। तो उसके लिए एक सिंपल सी बात यह है, एफ होता है एम ए, तो यहां पर एम क्या होगा, वैगन 1 वैगन 2 पर कितना फोर्स लगा रहा है। जो एक्चुअली आप कह रहे हो कि वैगन 2 पर फोर्स लगा रहा है, तो वो एक्चुअली उसको इन चारों पर फोर्स लगा, जो भी इसके पीछे होंगे इन चारों पर फोर्स लगाना पड़ेगा। मैं समझा रहा था आपको, अगर आप सेकंड की बात करते हो तो सेकंड इन 3 के ऊपर फोर्स लगाता है। अगर क्वेश्चन होता है कि ये 2 जो है ये 3 के ऊपर क्या फोर्स लगा रहा है, तो हम इन तीनों की बात करते हैं, ठीक है ना, सिर्फ 3 की बात नहीं करते। ऐसे ही जैसे यहाँ पर वैगन 1 की आप बात कर रहे हो कि वैगन 1 वैगन 2 पर कितना फोर्स लगा रहा है, तो हम वैगन 1 को छोड़ दीजिए, हम वैगन 2 की भी बात नहीं कर रहे, हमें इन चारों की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके पीछे 4 हैं। ये जो है इन चारों को एक्चुअली खींच रहा है ना। फोर्स बेशक इस पर लगा रहा है, लेकिन खींच ये सभी को ला रहा है, तो फोर्स एक्चुअली सब पर लग रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो। तो वैगन 1 ऑन वैगन 2, तो वो आप कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल है। उसके लिए मास लेंगे, मास ऑफ 4 वैगन्स इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है जी, मास ऑफ 4 वैगन्स इनटू एक्सेलरेशन। मास ऑफ 4 वैगन्स हम कैसे निकालेंगे, बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है, और वो क्या है, 4 इंटू 2000 इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन आप देखें, एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा, वो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो ये है 1.94 मीटर स्क्वायर। ये 4 इंटू 2000 kg होगा, ये 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। आप सॉल्व करके देखिए, आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है जी, आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या था, एक 8000 kg का इंजन था, जो पीछे इसके 5 वैगन्स लगे हुए हैं, इनको ये खींच रहा है, और हर वैगन जो है 2000 kg का है, ये इंजन 8000 kg का है। और अब क्या हो रहा है कि जो इंजन है, इट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन ऑन दीज 5 wagons. If the engine exerts a force of 40,000 Newton and the track on which these 5 engines and these 5 wagons and this engine were traveling, वो जो है वो क्या कर रहा है, इट इज़ ऑफरिंग अ फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 5000 न्यूटन। तो M1 हो गया 8000, M2 हो गया 5 इंटू 2000, 5 वैगन है ना, तो 10,000 kg। तो फोर्स जो है 40,000 न्यूटन ये इंजन लगा रहा है, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है 5000 न्यूटन है। तो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा अपोजिंग फोर्स होती है। तो अगर 40,000 न्यूटन फोर्स जो है वो लग रहा है, तो ये जो है माइनस में होगा 5000 न्यूटन। ठीक है जी, माइनस किया आपने, 35,000 न्यूटन, आपके पास आंसर आ गया। एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन निकालना है, वो हो गया नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट फोर्स जो है वो आपने अभी निकाला 35,000 न्यूटन। M1 प्लस M2 हो गया 8000 प्लस 1000, एंड आप करके देखिए 8000 प्लस 1000 नहीं, सॉरी, ये 10,000 हो गया ना, 8000 प्लस 10,000 था, और 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपने ये निकाल दिया। ये मैं पहले से ही कैलकुलेट करके बैठा था, तो मैंने आपको बता दिया 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। और आपने इसको फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2 निकालना था। तो वैगन 1 जो है इन सब के ऊपर फोर्स लगा रहा है, हालांकि ये 2 के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन इनडायरेक्टली ये 3, 4, 5 के साथ भी जुड़ा हुआ है ना, तो इसलिए 1 जो है ये इन सब के ऊपर फोर्स लगा रहा है, सिर्फ 2 के ऊपर नहीं लगा रहा। तो इसलिए मास ऑफ 4 वैगन्स आपको लेना पड़ेगा। मास ऑफ 4 वैगन्स हो गया 4 इंटू 2000, और एक्सेलरेशन 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपने निकाला हुआ है। कैलकुलेट करके देखिए, इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी एक अच्छी खासी वो बन जाएगी, इसमें 15,000 समथिंग होगा, आप करके देखिएगा। ठीक है जी, तो चलते हैं आगे। आज का थर्ड न्यूमेरिकल है ये, अ कार ऑफ मास 1 मेट्रिक टन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, मैंने एक आपको
यहाँ पर टाइम इन सेकंड लिया है और यहाँ पर स्पीड ली है किलोमीटर पर आवर में। ये आपको एक ग्राफ यहाँ पर दिख रहा होगा। तो न्यूमेरिकल क्या है वो सुन लीजिए। अ कार ऑफ मास 1 मेट्रिक टन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स टू अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। किस स्पीड तक जाता है? स्पीड है उसकी 72 किलोमीटर पर आवर। और ये कारनामा 20 सेकंड में पूरा होता है। देख लीजिए आप, 20 सेकंड में एक कार जो है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अटेन कर लेती है। ठीक है, और एक कार जो है इसका मास जो है वो कितना है? इट इज़ 1 मैट्रिक टन। ये क्या है? ये है 1 मैट्रिक टन। तो मास जो है कार का वो है 1 मैट्रिक टन। व्हाट इज 1 मैट्रिक टन? मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, इट इज 1000 kg, 1000 kg। ठीक है जी, चलते हैं थोड़ा सा और आगे। और एक और चीज़ बताई है, अ कार ऑफ मास इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ओके, इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो दिस इज 0 मीटर पर सेकेंड एंड इट अटेन्स अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। Now convert this speed of 72 kilometer per hour into meter per second and you shall get what? 20 meter per second. This is 20 meter per second. Okay. So mass है कार का 1 metric ton, that is 1000 kg. Initial velocity 0 meter per second. Final velocity 72 kilometer per hour. And we converted the 72 kilometer per hour into 20 meter per second. ये meter per second में हमने convert कर लिया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। It then moves with a constant velocity for 80 seconds. आप देखिए, it moves with a constant speed for 80 seconds. कैसे 80 सेकेंड हुआ? देखिए, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, है ना? तो यहाँ तक ये for 80 seconds velocity remains constant, the speed remains constant. Okay, and is brought to rest in next 10 seconds. So, अगले 10 सेकेंड में, ये मैंने यहाँ पर क्योंकि लिखने की जगह नहीं थी तो मैंने इसको मार्क करके नीचे कर दिया। ये 110 सेकंड में, 110 सेकंड में इट केम टू रेस्ट। ठीक है, तो अब क्या है? क्या था? कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द कार फ्रॉम 0 to 20 सेकेंड्स। ये 3 केसेस में हमने इसको बांट दिया। तो पहला केस, फ्रॉम फॉर 0 to 20 सेकेंड्स, 0 से 20 सेकेंड के लिए क्या होने वाला है? देखिए, एक्सेलरेशन होगा v माइनस यू अपॉन टी, है ना? ये तो यही होना चाहिए। लेकिन आपको पता है हमें निकालना क्या है? वी आर सपोज टू फाइंड फोर्स। और एक्सेलरेशन मैंने क्यों लिया? क्योंकि फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन निकाल के देखते हैं। v जो है वो 20 है ना? v जो है 20 है ना? ओके, माइनस u तो 0 था और टाइम 20 सेकेंड्स, है ना? देख लीजिए, एक्सेलरेशन हो गया v माइनस यू अपॉन टी, तो 20 माइनस 0 अपॉन 20, है ना? अब ये 20 क्यों आया? आप देखिए, ये तो 72 किलोमीटर पर आवर था। मैंने 20 क्यों लिखा? क्योंकि 72 किलोमीटर पर आवर होता है 20 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास आ गया 20 अपॉन 20। फोर्स जो है, आई एम सॉरी, एक्सेलरेशन जो है वो आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? एफ इज इक्वल टू एम ए, दैट इज एम क्या है? इट इज 1 मेट्रिक टन, दैट इज 1000 into 1 and it is 1000 न्यूटन। दिस इज योर आंसर। ठीक है जी, आई एम श्योर कि आप ये समझ पा रहे होंगे। मैं इसको ग्राफ को थोड़ा अलग डिफ्रेंशिएट करने के लिए ऐसे लाइन डाल दी है। ओके, चलते हैं आगे। अब हम सेकंड पार्ट के बारे में बात करते हैं। सेकंड पार्ट भी आप देख लीजिए। सेकंड पार्ट में बोला गया है 20 to 100 सेकेंड, फॉर 20 to 100 सेकेंड। 20 to 100 सेकेंड, ये तो कांस्टेंट स्पीड थी, कांस्टेंट वेलोसिटी थी। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन इज v माइनस यू अपॉन टी। व्हाट अबाउट v? इट इज़ 20 माइनस 0 अपॉन 20, क्योंकि यहाँ पर
72 किलोमीटर पर आ रही है ना, वो 20 मीटर पर सेकेंड होगा। तो इट इज़ अगेन 1 मीटर आई एम सॉरी, ये इनिशियल वेलोसिटी 20 है और फाइनल वेलोसिटी भी इसमें 20 ही होगी, है ना। तो 20 माइनस 20 हो गया, तो 20 माइनस 20 हो गया 0। 0/20 इज व्हाट? इट इज़ 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो गया? 0 हो गया। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो F इज इक्वल टू एम ए अगर आप लेंगे वो हो गया 1000 इंटू 0, व्हाट इज़ दैट? इट इज़ 0। ठीक है जी, मैं रिपीट कर देता हूँ, एक बार देख लीजिए। यहाँ ये इनिशियल 20 सेकंड पे इनिशियल होगा और 100 सेकंड पे फाइनल। तो यहाँ पर तो 72 किलोमीटर पर आवर यानी कि 20 मीटर पर सेकंड हो, तो यहाँ पर भी 20 मीटर पर सेकंड ही होगा। तो हमने 20 माइनस 20 लिखकर इसको 0 कर दिया और 0/20 होता है 0 मीटर पर सेकंड। तो फोर्स जो है वो क्या लगी? 0 न्यूटन। ठीक है जी, ये फोर्स यहाँ पर लग रही है, मतलब कोई फोर्स जो है यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रही। अब हम क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे 100 सेकेंड टू 110 सेकेंड की, थर्ड पार्ट ये है 100 सेकेंड टू, दिस इज फॉर 100 सेकेंड टू 110 सेकेंड। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी तो यही रहेगी, ये पॉइंट, ये इनिशियल वेलोसिटी है, यानी कि u इज़ गोइंग टू बी 20 मीटर पर सेकेंड। v जो है वो रेस्ट पर आने वाला है, आपको पता है ये इस पॉइंट पे ये रेस्ट पर आ जाएगा, तो ये 0 मीटर पर सेकेंड। और इसके लिए टाइम कितना लगा वो देखिए आप, 100 से 110 सेकंड का गैप है, यानी कि टाइम जो है वो सिर्फ 10 सेकंड का लगा। टाइम जो है सिर्फ 10 सेकंड का लगा, और टाइम अगर सिर्फ 10 सेकंड का लगा तो आप सोचिए एक्सेलरेशन जो है वो क्या होने वाला है। एक्सेलरेशन हो गया v that is 0 minus u that is 20/t that is 10 and it is -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी, तो फोर्स क्या लगा? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? मास होगा 1000 और एक्सेलरेशन क्या होगा? -2 एंड व्हाट इज दैट? इट इज -2000 न्यूटन। ओके, तो नेगेटिव साइन जो है वो क्या बता रहा है? नेगेटिव साइन ये बता रहा है द फोर्स अपोजिंग मोशन ऑफ द बॉडी। ये फोर्स जो है मोशन को अपोज कर रही है, ये बता रहा है। ठीक है जी, तो आप देख लीजिए, ये आपके पास पूरा जो है क्वेश्चन था। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ गया होगा। मैं फिर भी आपकी हेल्प के लिए एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। ठीक है जी, आप देखिए, इसको हम रिपीट कर रहे हैं। मास है 1 मेट्रिक टन, दैट इज 1000 kg। इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर। इसको मैंने 20 मीटर पर सेकेंड कर दिया। अब यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक के लिए फोर्स निकालना है, यहाँ से यहाँ के लिए। ये इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, फाइनल वेलोसिटी ये है 72 किलोमीटर पर आवर, जिसको हमने 20 मीटर पर सेकेंड निकाल दिया। और यहाँ तक पहुँचने के लिए टाइम लगा 20 सेकेंड्स का। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकाल कर देखा और ये आया 1000 न्यूटन टोटल फोर्स। 20 से यहाँ तक, 20 से 100 में क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा v माइनस u/t, दैट इज v क्या है? v तो ये वाला पोर्शन है और सॉरी u तो ये वाला पोर्शन और v वाला पोर्शन ये है। यहाँ पर भी 72 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर भी 72 किलोमीटर पर आवर, और आपने 72 किलोमीटर पर आवर को चेंज किया था, इट इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। तो 20 माइनस 20/20, क्योंकि आई एम सॉरी, इसके लिए टाइम जो है 20 ने लिया, ये 20, 40, 60 और 80 लगा, तो आप इसको 80 लिखेंगे। 0/80, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉरी, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में गलती हुई है, तो आप ध्यान दीजिएगा, आप खुद ध्यान से कीजिएगा कि ये जो है ये 80 कहाँ से आया, मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी, फोर्स है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन, मास है 1000 और एक्सेलरेशन तो यहाँ पर 0 होने वाला है, तो 0 मीटर। आप दूसरा 100 सेकेंड से लेकर 110 सेकेंड के लिए अगर आप देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? u इज इक्वल 20 मीटर पर सेकेंड, v इज इक्वल 0 मीटर पर सेकेंड एंड यू सॉल्व इट, यू गॉट -2000 न्यूटन। आई एम श्योर कि आपको ये टॉपिक आज का बड़े अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिए। गुड डे।